हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। हम भी कर ही रहे हैं और we're जस्ट गेटिंग बाय। वर्ल्ड कप चल रहा है और कल हमने एक एपिसोड शूट की थी, आज एक की है। मैं चाह रहा हूँ रेगुलरली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बैंक कर सके डेटा बैंक के लिए, बिकॉज आई विल बी एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग वंस अगैन। फॉर नाउ I will be right after World Cup. I will be in Abu Dhabi for at least 2 weeks. This is going to be the longest I've ever been in Abu Dhabi. Normally वहाँ एक ही दिन गुजारा है max to max. That is primarily because I will be making content inshallah for Bangla Tigers जो T10 की जो सीरीज होती है वहाँ पे, तो उसके लिए they have signed me up and I'm really excited to do that. Instagram पे मैं share already कर चुका हूँ और so yeah. That's that. तो वो होगा। उसके बाद मे बी और मे बी नॉट ह्यूस्टन फॉर अ शो विद अ वेरी बिग लेजेंड। अभी नाम नहीं ले रहा बट अभी चीज़ें इन प्रोसेस में हैं। बट उसके बाद इंशाल्लाह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली रिमार्केबल। आई होप थिंग्स वर्क आउट। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो या, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर लूँ। एंड हाउ एवर इवन दो वी हैव 13,000 emails, मगर आज जब मैं लेके बैठा कि भाई मतलब लाइक आई नीड समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। सेम शादियाँ रिलेशनशिप्स वाली बहुत हो गई, वीज़ा इश्यूज़ वाले बहुत हो गए। इनफैक्ट आज जो एपिसोड अपलोड हुई वो भी वीज़ा इशू वाली, और कल जो मैंने शूट की थी उसमें भी वीज़ा वाले ही इश्यूज़ थे। सो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी हो। तो आज वैरायटी ढूंढते ढूंढते मैं ऑल द वे जुलाई तक निकल गया। और जुलाई की ये ईमेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, ये अब जाके रीड हो रही है। आई एम श्योर इससे बहुत पुरानी भी हैं। इट्स जस्ट वे टू मच। तो ये थोड़ी सी मुझे लगी ज़रा डिफरेंट, तो मैंने सोचा कि आज शेयर करता। बट बिफोर दैट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वी आर स्टिल वेरी लो ऑन द नंबर्स। अगर आप सुन भी रहे हैं इसको अपनी ऑडियो पॉडकास्ट पे, तो प्लीज़ 1 मिनट निकालें, 30 सेकंड निकालें अपने वक्त से और यूट्यूब पे जाके just subscribe the channel. It helps us a lot. And you can support this channel on patreon.com/ganjiswag. Patreon से जो होता है, it helps us keep this channel ad free in the sense कि इसमें कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट नहीं होती। हाँ, यूट्यूब के जो चलते हैं वो चलते हैं, ज़ाहिर है, और वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम चाहते हैं ये चैनल बिल्कुल ही एड फ्री रहे एंड इट शुड बी फॉर द पीपल बाय द पीपल। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, टेकिंग अ फैक्चुअल अप्रोच टू द वर्ल्ड made me hate people around me. Well, tell me about it, bro. Hey Junaid bhai, hope you're doing well. My name is ABC. I'm a big fan of your YouTube channel and I've learned a lot from you. I wanted to talk to you about something that's been bothering me a lot. I've always had this thing inside me that makes me question everything that I'm told. Since I was young, I got into the habit of checking everything. Within a year or two, I became pretty good at debating almost anyone on any topic, especially politics. But here's the problem. It's made me dislike people around me, even my parents. Whenever someone keeps repeating things that are just plain wrong, it gets to me. I start hating them. Almost everyone I know falls into this category. It's frustrating because I can't help but think that these people are just clueless, talking about stuff without bothering to check the facts. And when it comes to politics, it's even worse. Seriously, have they ever taken the time to research the politicians they support? I don't support any politician in Pakistan because I believe they all have their good and bad sides. And let's be honest, we all know who's running the country, right? All these things happening around me have made me isolate myself. I spend most of my time in my room reading articles about geopolitics, history, and other things that interest me. But here's the dilemma. Should I just accept that people don't want to learn the truth and are happy believing whatever they're told? Or should I try to educate them and encourage them to do some research on the things they talk about? The problem is, I'm scared they'll shut me down and humiliate me, saying things like, हमें मत बताओ, तुमसे बड़े हैं इसलिए तुमसे ज़्यादा समझते हैं. I admire your content because you take a factual approach and it resonates with me. That's why I wanted to share my story and ask for your advice. How can I handle this situation and find a way to balance my thirst for the truth with maintaining good relationships with people? I would appreciate your thoughts and any suggestions you have. Thanks for taking the time to read my email, and I'll be eagerly waiting for your response. Well, first of all, you had to wait 4 months, sadly, to get my response. Secondly, well, I am totally down with you on this.
एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई ट्राई टू डू विद माय चैनल. सो वेयर डू आई स्टार्ट? इस मुल्क में मंजन बेचना बहुत आसान है. किसी को एजुकेट करना या करेक्ट करना, या करेक्ट ना भी सही बट एक दूसरा व्यू पॉइंट दिखाना कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, एंड आई गेट ऑल दोज थ्रेट्स ऑल द टाइम बिकॉज आई लाइक टू चैलेंज थिंग्स एंड आई लाइक टू क्वेश्चन थिंग्स. ये जो आपकी आदत है, ये आदत मुझ में भी रही है हमेशा, और विच इज़ वाई आई मीन मैं लोगों को हमेशा यही कहता हूँ कि अक्सर जो लोग मिलते हैं एंड दे प्रेज मी एंड एवरीथिंग, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि लाइक जो मेजर डिफरेंस है आप में या मुझ में, वो ये है कि मैं अगर कोई चीज़ होती है मैं गूगल कर लेता हूँ. यू नो, आई क्वेश्चन थिंग्स. गलतियाँ भी हो जाती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने हमेशा सही चीज़ बोली. कभी कभी फैक्चुअली आई हैव बीन ऑल्सो रॉन्ग एट टाइम्स एंड दैट्स परफेक्टली फाइन. आई लाइक टू एडमिट. इनफैक्ट मैं तो आपको बार बार अगर आप इस चैनल की वीडियोस देखें तो मैं तो बार बार कहता हूँ भाई प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और कमेंट में ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे भी एजुकेशन मिले. तो मुझ में ये वाली तो ईगो है नहीं कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता. गलत जो कभी नहीं हो सकती वो सिर्फ खुदा की ज़ात है, राइट. सो मैं हमेशा आई ट्राई टू स्टे हम्बल एंड ऑन द ग्राउंड, एंड आई एम ऑलवेज कमिंग अक्रॉस एज कि भाई मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद आपसे सीखना है. इनफैक्ट हाफ माई टीम इज़ अंडर 25, एंड बाय हाफ आई मीन लाइक 26 people का हाफ, right. And my latest mentoree is a 15-year-old. So this kid he reached out to me. उसकी बातों में इतनी पॉजिटिविटी थी, मतलब तुम यहाँ पे आओ. सो वो रोज़ आता है सुरजानी टाउन से, इमेजिन क्लिफ्टन आता है 2 बसें बदल के. पढ़ता भी है, बहुत जीनियस है, तो वो पढ़ाई निकाल लेता है. गॉडे में लैपटॉप यहीं पे रखा हुआ है, लाने ले जाने में छिन सकता है. हमारे 3 एम्प्लॉयज़ पिछले महीने उनके साथ रॉबरी हुई. सो वो छोटा बच्चा है, बस में कोई छीन ले, चमाट मारते, वो क्या ही करेगा. वेरी पिटीट गाय, राइट. सो यहाँ रखा हुआ है, वो आता है रोज़, उस पर चीज़ें खुद ही समझता रहता है. मतलब आई हैव गिवन हिम लिबर्टी, जो तुमने करना है करो. उसको अमेज़ॉन का शौक़ है, इन चीज़ों का शौक़ है. अगेन वो भी उसी तरह का है, फैक्ट चेकिंग और चीज़ों में घुसता है. सो आई रियली एडमायर दैट. तो मैं तो उसके साथ बैठता हूँ रोज़ाना, मैं सेशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ आज क्या सीखा और मुझे भी सिखाओ. तो मुझे चीज़ें बता रहा होता है क्या चीज़ हो रही है. उसने बताया कि जी बाइनेंस का जो ओनर है सीजी, ही माइट बी जेल्ड, सो दैट माइट अफेक्ट सम क्रिप्टो करेंसीज, और फिर दूसरे जो वो हैं वो ऊपर जाएंगे, दिस दैट. इट्स लाइक अ 15-year-old टीचिंग मी अ लॉट ऑफ स्टफ. तो मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जो टाइम मैं नहीं लगा सकता न्यूज़ पढ़ने में या दूसरे आर्टिकल्स पढ़ने में, वो कर लेता है. सो मैं कहता हूँ मुझे समरी वाले मोड में आ जाता हूँ मैं. आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ ओपन कि भाई मुझे सिखाएं आप. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों की ये सिफ्त नहीं होती, और मैं बड़ा ब्लेस समझता हूँ अपने आप को. और मेरी कामयाबी का राज भी यही है कि मैं हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ. मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैं नंबर 1 यूट्यूबर हूँ और बस मैं ही बेस्ट हूँ और मैं ही ऊपर रहूँगा. नो, दैट्स नॉट द फैक्ट. देयर आर पीपल हु आर डूइंग बेटर देन मी, एंड देयर विल बी पीपल हु विल आउटशाइन मी. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, राइट. रही बात फैक्ट चेकिंग की, अब मसला ये है कि जैसे पॉलिटिक्स की आपने बात की या दूसरी चीज़ों की बात की, हमारे लोग इट्स वेरी स्ट्रेंज कि जितना पॉलिटिक्स से शौक है, हमारी महफिलों में वही डिस्कशन होती है, चाहे वो शादी ब्याह हो, इवन मैयत हो, कब्रिस्तान में लोग जो जिनका नहीं होता अपना, साइड पे खड़े होकर पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं. ख़ानदान में फिर पॉलिटिक्स अलग होती है, ऑफिस की पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स के अलावा दुनिया है ही नहीं. उसके बावजूद पॉलिटिक्स की अलिफ बे ही नहीं आती उनको कुछ नहीं. उनकी सारी समझ जो है सतही है, सरफेस लेवल की उनकी थिंकिंग है. ठीक है, हर कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट या नॉम चॉम्स्की भी नहीं बन सकता, मगर सही गलत तो पता ही हो सकता है ना. अब अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, पता नहीं कौन सा थे, वो कह रहे इमरान खान को दाल में ज़्यादा मिर्चा डाल के दे दी तो उनकी दोपहर की 2 रोटियां बची हुई थी, तो उन्होंने जेलर को बोला कि वो 2 रोटियां लो. अब वो 2 की बजाय 4 रोटियों के साथ जब दाल खाई तो मिर्चें कम हो गई. हु द फक टोल्ड यू दैट? मतलब लाइक कहानियां बना रहे हैं. क्योंकि देखें, ख़रीदने वाले बहुत है ना. हमारे मुल्क में मंजन इसलिए बिकता है, और हर तौर का मंजन, चाहे वो मजहबी मंजन हो, चाहे वो कामयाबी का मंजन हो कि भाई तुम ये कर लो वो कर लो, वो इसलिए बिकता है क्योंकि लोगों ने फैक्ट चेकिंग करनी नहीं है. इसमें मैं भोले नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा क्योंकि लोग हैं, राइट. भोला तो एक ज़रा भोला सा अच्छा सा वर्ड है ना. डम एसेस हैं लोग, तो वो इसलिए हमारे यहाँ इस तरह के आपको बेचने वाले बहुत मिलते हैं, और वो कामयाब हैं, राइट. मैंने अभी रिसेंटली ज़ाहिर है ये फ़लस्तीन और इसराइल वाले जो मामलात हुए हैं,
ऑब्वियसली एक डिफरेंट वेव चल रही है सोशल मीडिया पे, लोग बाकायदा बैठे में पूरा दिन देख रहे हैं कि आयशा खान ने लगाया कि नहीं लगाया, या फलानी एक्ट्रेस क्या कर रही है, अच्छा वो अवार्ड में गई हुई है तो वो, मतलब लोग इसी ताक में बैठे हैं। अच्छा फिर उसमें लोग कर क्या रहे हैं कि वो वर्चू सिग्नलिंग का दौर है ना, बस लोग चाहते हैं हमें दिखा दो, तस्वीर पकड़ के बैठ जाओ, पर पीछे से जैसे भी हो आप, इसलिए प्राइम मिनिस्टर तस्वीर पकड़ के बैठते हैं, उनको पता है बिकता यही है, राइट। तो जो है लोग फिर क्या कर रहे हैं, अभी लिटरली ये रिकॉर्डिंग होने से पहले आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू स्टोरीज ऑफ माय फ्रेंड्स, साहिब आए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़ाहिर है सलाम दुआ है उनसे, तो वो किटी पार्टी चल रही है, फ्रेंड्स हैं, क्लोजअप्स हैं, सेल्फीज़ हैं, फिर बीच में फ़लस्तीन आया, फिर बैक टू प्लेटर आ गया, इतना कबाब चल रहे हैं, मतलब वो एक लोग जो है ना बस लुकमा डाल रहे हैं कि हाँ देखो मैंने कर लिया, दूसरों को खुश करने के लिए। इम्पैक्ट उसका कुछ नहीं है। अब आप ये चीज़ पॉइंट आउट करो तो आप ही गंदे होते हो, और मुझे बहुत से लोगों ने नाराज़ भी हुए इस बात पे, बिकॉज आई ट्राई टू टॉक सेंस कि भाई ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कह रहे हो ये बिस्किट इसराइल का है, ये बिस्किट लाड़काना में बनता है, इसराइल में नहीं बनता। खैर अब बंदा क्या ही बात करे लोगों से, लोगों को पता ही नहीं कौन सी, एक लिस्ट मैंने देखी उसमें था कि भाई ये इसराइली प्रोडक्ट हैं ये बैन करें, उसमें से 4 तो वो थी जो कि पिछली बार जब हम फ्रांस का बॉयकॉट कर रहे थे तो उसमें भी थी। तो पहले डिसाइड तो कर लो कौन सी कहाँ की कंपनी है, बस जो लेबल लोगो नजर आया डाल दिया, लाइफ बॉय भी डाल दो, ये भी डाल दो, सब डाल दो। खैर तो मैंने अब इस खास तौर पे इस रीसेंट एपिसोड से ये सीखा है कि एजुकेट करना ना, खास तौर पे इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान कैन बी वेरी रिस्की। यू कैन रिस्क योर करियर और वर्स यू कैन रिस्क योर लाइफ, राइट। लोग तो बेवकूफ़ हैं। अब कल मैं आ रहा था, संडे का दिन था, काम पे आ रहा था, मैं तो करता हूँ संडे को काम, और बोर्ड बेसन पे पूरा जुलूस था फ़लस्तीन के हक में एक रैली थी, राइट। और पूरा बोर्ड बेसन ऑल द वे टू मोटास, मतलब ये बहुत लंबा रोड है, राइट। तो वो बंद था, खैर दूसरी साइड खुली थी, वहाँ से मैं आ गया। मैं देख रहा था लोग खड़े हुए थे। अब बंदा क्या है पूछे, फ़लस्तीन के 3 शहरों के नाम बता दो, एक भी नहीं पता होगा लोगों को, बट निकले में स्पिरिट में, चलो ठीक है जी, वट एवर रॉक्स योर बोट। और उसी रोड पे सीधा जाए तो यूएस काउंसलेट है, वो यूएस काउंसलेट, वो अमेरिका जिसने अपने B-52 बॉम्बर भेजे हुए हैं, जिसने अपना हैरी ट्रूमन वाला बहरी बेड़ा फ्लाइट कैरियर, राइट, वो भेजा हुआ है। तो थोड़ा सा और आगे जाए तो यूएस काउंसलेट है, तो वहाँ जाके करे ना, डकी भाई को इनबॉक्स कर रहे हो आप लोग, अबे जो क्रक्स है वहाँ जाओ। खैर अब तुम पॉइंट मी, मैंने ये फैसला किया कि भाई एजुकेट करने में ना गालियाँ भी आप खाते हो, गंदे भी आप होते हो, और फिर कोई सर फेरा हो तो गोली मार देगा आपको। तो बेहतर है इस मुल्क में अगर आपने सर्वाइव करना है तो यार बनाओ, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, और उसमें आपकी इज़्ज़त भी है और पैसा भी बहुत है और लोग कमा रहे हैं धड़ाधड़। तो अब यही करना है, ठीक है ना। तो आप भी भाई अपनी ज़िंदगी रिस्क ना करो, या बॉयकॉट हो जाएगा आपका ख़ानदान में। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अक्सर गाड़ी चला रहा होता हूँ और बूढ़े अंकल कोई रॉन्ग वे आते हैं, तो मुझे ना अब गुस्सा नहीं आता, मुझे तरस आता है कि यार एक बंदे ने 60 साल में ये तक नहीं सीखा कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, दिस इज़ द रॉन्ग थिंग, ये सही है ये गलत है। तो अब मुझे तरस आता है। और आप किस किस को पकड़ के सीधा करोगे, इसको करोगे तो 4 वो बिगड़ जाएंगे। वो कोई कौन सा गेम होता है यार जिसमें आप एक तरफ जाते हो तो चीज़ें फिर वहाँ बिगड़ जाती, फिर आप वहाँ जाते हो तो मतलब लाइक पजल होता है। तो भाई किस किस को पकड़ोगे। आज सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके पास अब तो वो भी नहीं रहा ना कि जी हमें हिदायत नहीं मिली। अब जैसे एस्किमोज जाके अल्लाह मियाँ से शिकायत कर सकते हैं कि भाई हम तक तो कोई पैगंबर नहीं आया, विच आई एम श्योर हर जगह आए हैं। 1,24,000 हमारे पास तो डॉक्यूमेंट सिर्फ मिडल ईस्ट का ही है, 1,24,000 हर जगह गए होंगे, मगर क्या पता दूर अमेज़ॉन में या कोई एस्किमो बोल दे कि हमें तो नहीं मिला, राइट। अब तो वो सीन नहीं है, अब आपके पास नुस्खा है, इंटरनेट है, आप सब कुछ जान सकते हो, पहचान सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आप जाहिल रहना चाहते हो तो दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। तो अब मैं इसको कहता हूँ भाई लोगों का ये अपना प्रॉब्लम है, अब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑब्वियसली अपने लोग हैं, दुख होता है, दिल करता है कि यार आप किसी को एक राह दिखाने की कोशिश करो। सही है गलत है वो ज़ाहिर है, वो तो सब्जेक्टिव बात है, जो मेरे लिए सही है आपके लिए गलत, जो आपके लिए सही है मेरे लिए गलत हो सकती है, तो सब्जेक्टिव थिंग। मगर दिल तो करता ना कि यार आप एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करो, तो उसमें यार गंदे आप ही होते हो। तो ये फैक्ट चेकिंग भाई अपने तक ही रखो, और मैं भी अपने तक ही रखता हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट, आई डोंट टॉक अबाउट देम एनी मोर।
बहुत से लोग कहते हैं यार अब आप में वो वाला फ्लेवर नहीं दिखता जो 4 साल पहले था। 4 साल पहले आई वॉज नॉट एज बिग एज आई एम नाउ। तो जहाँ जहाँ आपको बढ़ती जाती है ना आउटरीच, तो फिर आपका रिस्क लेवल भी बढ़ता जाता है। एंड लाइक प्लेस लाइक पाकिस्तान, dude you're worth shit, right? तो ऑन कैमरा गाड़ी चढ़ा के लोग मार देते हैं और फिर वो भी जज से बरी हो जाते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, यूर ऑन योर ओन। तो भाई सेफ्टी फर्स्ट। औलाद है मेरी, मुझे उनके लिए ज़िंदा रहना है। मैं किन के लिए अपनी जान ज़ाया करूँ? मैं खल्ली वल्ली भाई, हमने भी खुद सीखा था, ये लोग भी खुद सीखें। नॉट माई प्रॉब्लम एनी मोर। सो मैं अब पकड़ पकड़ के भाई नहीं करता, क्योंकि इट्स नॉट वर्थ इट। आपको फिर आगे से डिप्रेशन ही होता है, गुस्सा ही आता है, अंदर ही अंदर कोड़ते हो आप। तो ये तो है, यू विल बी आइसोलेटेड, इट्स वेरी लोनली एट द टॉप मैन। और ये तो है। फिर वही वाली बात है ना, ये वो जो एलेगोरी ऑफ द केव जो स्टोरी है प्लेटो की, उसमें वो यही होता है ना कि 3 लोग होते हैं, चेंड होते हैं, पीछे आग जल रही होती है, उसका जो इमेज आ रहा होता है रिफ्लेक्शन, तो वो उनकी रियलिटी था। तो फिर एक दिन एक की चेन खुल जाती है, वो बाहर जाता है, वो तो दिखता है, तो स्काई इज ब्लू द ग्रास इज ग्रीन, वो अंदर आके बताते तो वो कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। सो यू डोंट वांट टू बी दैट गाय मैन। सो या अपने तक ही रखें फैक्ट चेकिंग, और आप अपनी ज़िंदगी खुद जिम्मेदार हैं, दूसरों का भाई ठेका हमने नहीं लिया हुआ। मैंने तो छोड़ दिया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा अब दिल ही नहीं करता। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन टॉक अबाउट रोज़ाना की बुनियाद पे, देयर इज सो मच हैपनिंग, मगर नहीं, बहुत हो गया। फजूल में गालियाँ खाना किसी को नहीं अच्छा लगता यार। इट्स नॉट लाइक आई कांट डील विद हेट, आई कैन, बट लाइक अननेसेसरी है। जो लोग खुद ही चेंज होना चाहते हैं ना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, राइट? जो रीहैब नहीं लेना चाह रहा या जो नशा नहीं छोड़ना चाह रहा, अगर उनको भाई खुद गर्जी के नशे चढ़े हुए हैं तो चढ़ने दें। और नशे चढ़ाए गए हैं इसीलिए कि मतलब इल्यूजन में रखा जाए, ताकि जो काम करने वाले अपना काम किए जाए। वो कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ये बेवकूफ़ इल्यूजन में। सो भाई मैं नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, खुद जिम्मेदार हैं लोग। आपको भी मैं यही बोलूँगा भाई, आगे डिप्रेशन ही है, फिर किस किस को पकड़ोगे? अपने काम से काम रखो, अपनी ज़िंदगी जियो। हालांकि मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन मसला ये है कि वही वाली बात है कि अगर इफ़ पीपल वांट टू हेयर यू आउट, हमें वो भी नहीं सिखाया ना द आर्ट ऑफ हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट कैसे किया जाता है, माँ बाप की गाली दिए बगैर, चाकू मारे बगैर, धमकियाँ दिए बगैर, तो हमें तो वो सिखाया ही नहीं है। तो जहाँ पे आर्ग्यूमेंट का आर्ट लोगों को आता हो, वहाँ आप आर्ग्यू करें। तो दूसरी सोसाइटीज़ में या दूसरे टाइप के लोग, इधर तो बेकार ही है, अपना गला ख़राब करना है, चीख के अपने गला ख़राब होगा, दूसरे तो बह रहे हैं। और अब मुझे समझ आती है, हम जब स्कूल में थे तो हमें ये आयत समझ ही नहीं आती थी कि जिनके दिलों में ताले पड़ गए हैं उनको नहीं नज़र आती हिदायत। तो मैं समझ ही नहीं आती थी ऐसा कैसे हो सकता है। हाउ कैन यू सी कि ये पानी है, इसमें डूब के लोग मर सकते हैं, और लोग फिर भी ना उसको समझें। बट अब नज़र आता है, अब समझ आती है चीज़। ताले पड़े हुए भाई, तो अल्लाह जिसको हिदायत दे। मैं तो कहता हूँ आज के दौर में वो ब्लेस्ड है कि अल्लाह जिसको सही मानों में हिदायत दे दे और उसकी तीसरी आँख खोल दे, ताकि वो रियलिटी वो ना देखे जो दिखाई जा रही है, बल्कि वो देखने के काबिल हो जाए जो कि वो खुद से ढूंढता है। खोज ही है ना, खुदा भी एक खोज है, मज़हब भी एक खोज है। खोजना है, हमने खोजना ही छोड़ दिया है, खुजाना शुरू किया है, वही करते हैं हम। खैर, विदाउट डेल्विंग मच इनटू इट, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी आसान करें, दूसरों की ज़िंदगी का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। ये व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड वाली अवाम है, इनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ही रहने दें, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने दें, ज़िंदगी सफल करें अपनी और इन्जॉय करें। थैंक यू। हाँ जी, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये मैजिक हो गया, मेरी शर्ट बदल गई, मेरी शेव बन गई। वो इसलिए क्योंकि कल हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, एग्जैक्टली जैसे ही वो सवाल ख़त्म हुआ एंड आई वाज गोना मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, लाइट चली गई। और फिर हमने बाहर जाके देखा, पूरे मोहल्ले की, पूरे एरिया की लाइट नहीं थी, विच मेंट कि ये लंबा सीन है एंड वी डोंट नो कि कब आई, क्योंकि हम फिर ऑफिस बंद करके जा चुके थे। एंड इट्स क्वाइट अ रूटीन। हम लोग वैसे बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चन, जब भी कोई पॉडकास्ट गेस्ट बुलाते हैं तो हम हमेशा रिकॉर्डिंग शाम को करते हैं 7 बजे के बाद। के अगर वो वर्किंग प्रोफेशनल है या इवन अगर कोई आर्टिस्ट है दिन भर में अपने काम मुका के आ जाए। दूसरा और मेन रीज़न ये होता है कि चूँकि इवन दो वेयर इन
ऑलमोस्ट इन नवंबर नाउ, 31 अक्टूबर है, सख्त गर्मी है दिन के टाइम। तो गर्मी में ज़ाहिर एसी का यूजेज ज़्यादा होता है और शहर भर में लोड शेडिंग का ख़तरा होता है। सो आई डोंट वांट कि कोई गेस्ट आए और लाइट चली जाए ना। अब आप बोलेंगे जुनेद भाई हम इतना कमाते हैं कि जनरेटर ले लें। जनरेटर कितने का लें, क्योंकि बहुत बड़ी हैवी लाइट्स होती हैं, ऑफिस को चलाने के लिए काफ़ी नहीं होता। और इतना बड़ा जनरेटर किसी और के घर की छत पे ले रखे, ये 30 साल पुराना घर है, छत वत पे कोई मसला हो वो अलग मसला है, चोरी चकारी के अलग मसले, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोलर अगेन किसी और के घर में इन्वेस्टमेंट करने इट डजंट मेक सेंस। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल हमारे वैसे ही होने वाले हैं। बड़े मसले मसाइल हैं। और होता ये है महीने में एक बार कम अज़ कम हम जब ऑफिस आते हैं तो लाइट गई हुई होती है सुबह 8 बजे की, और फिर जब मोहल्ले वालों से पूछते हैं तो वो SMS आया होता है कि शाम को 7 बजे आएगी क्योंकि रिपेयर हो रहा है। नाउ हमें ये मैसेज क्यों नहीं आता, क्योंकि ये मालिक मकान के नाम है, तो उनके फ़ोन पे वो मैसेज जाता होगा और वो इस मुल्क में नहीं रहते, तो हमें पता है, हमें फिर सरप्राइज़ मिलता है। अब 26 लोगों की सैलरी महीने में कम से कम एक बार ऐसे ही जाती है। और फिर वो गर्मी में हम बैठे होते हैं, उम्मीद लगाते हैं 2-3 बजे लाइट आ जाए, मगर वो नहीं आती तो फिर घर सबको भेजना पड़ता है। तो वो अच्छा खासा लॉस होता है। आप में से जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एम्प्लॉयर के लिए कितना पेनफुल होता है। और काम वाले दिन अगर लाइट चली जाए तो ये बड़ा इशू रहता है। तो इसलिए हम गेस्ट को शाम को बुलाते हैं। और अगर कोई बहुत बड़ा गेस्ट हो, फॉर एग्जांपल समवन यू डोंट वांट टू रिस्क एनीथिंग विद, तो फिर हम एक जनरेटर वाली गाड़ी मंगाते हैं, जो कि कितना लेता रहा, 10-12 हज़ार रुपये। हाँ, 10-12 हज़ार रुपये। वो स्टैंड बाय पे जनरेटर होता है, उसकी सुजुकी पे बाहर होता है, तार अंदर आ रही होती है, इन केस अगर लाइट जाए तो हम फ़ौरन स्विच कर लें। तो वो अगर बहुत कोई रिस्की, जैसे वसीम भाई आए हुए थे, तो ज़ाहिर है हमें ख्याल करना पड़ता है। इस तरह के बड़े सेलिब्रिटीज़ हों तो हमें ये एक चीज़ करनी पड़ती है। फजूल की कॉस्ट है ये, बट जस्ट बिकॉज वी लिव हेयर तो हमें ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो इसलिए कल एपिसोड अधूरी रहेगी, तो आज बाकी वहीं से शुरू करते हैं। बाय द वे एक और चीज़, कल आई थिंक एपिसोड नंबर 138 या 139 लगी थी, और मुझे इमीडिएटली 2-3 दोस्तों के मैसेज आए, दे वर कंसर्न अबाउट माई मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद ये कोई वीडियो देख कर आ रहा है। सो आई फिगर्ड कि वो एपिसोड अपलोड हुई थी, और फिर मैंने सोचा कि मेरा इसमें मूड क्यों ख़राब है अगर इनको ऐसा लग रहा है। फिर मुझे याद आया दैट आई मेड दैट एग्जैक्टली वंस आई गॉट बैक फ्रॉम US। तो वो मैं एक्सट्रीम जेट लैग में था, और चूँकि 2-3 हफ्ते हो गए थे वीडियो नहीं आई थी, तो मुझे आपके लिए बनानी थी, तो इसलिए मुझे मेरा उसमें ज़रा मूड आउट लग रहा था। सो सॉरी अबाउट दैट। एनीवे, सवाल है गोरा कॉम्प्लेक्स इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई एम mid-30s गाय ओवरसीज लिविंग इन द UK Midlands area since 2019. Originally, I'm from Karachi. Recently, I've been watching videos of British/English vloggers who visit Pakistan and being treated as royalty, and Pakistani shopkeepers don't let them pay for food or things and give them unreasonable discounts and offer them free things. I can't get myself to think that Pakistani people are being hospitable to these British or white vloggers, but I'd rather say that there is some sort of white privilege being enjoyed by these white vloggers, or Pakistani people have incredible Gora complex. This is not the case when you're a Pakistani and you visit or live in the UK like I do. We never get treated like that by Goras in the UK. I can tell you that I have faced racism by Goras in the UK. I've frequently been talked with rudely by white shop assistants or shopkeepers. They don't really smile at me or greet me like they would treat white people. I often get dirty looks and stares from Goras in shops, trains, or public places. I have faced discrimination at work as well. I know that हम यहाँ UK में गोरों को नहीं समझा सकते, बट पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को तो समझा सकते हैं। सो सवाल ये है कि आखिर कौन सा ऐसा दिन आएगा कि पाकिस्तानियों को गोरा कॉम्प्लेक्स ख़त्म होगा। एंड ऑफ क्वेश्चन। इन केस यू नीड सम रेफरेंस, उन्होंने 2-3 मुझे यूट्यूब के लिंक भेजे हैं, विच आई डोंट नीड टू सी बिकॉज आई नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। और ये बिल्कुल ऐसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी टू हेयर अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन द UK। आपको जो चीज़ें फेस करनी पड़ी, झेलनी पड़ी, जिस तरह आपने लिखा दुकानों पे, ट्रेन्स में, मेट्रो वगैरह में। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। रही बात ये यूट्यूबर्स की, ये बिल्कुल गोरा कॉम्प्लेक्स हमें है, और आज से नहीं है, 500 साल से है। इनफैक्ट जब गोरे पहले आए थे तभी हमने उनको सर पे चढ़ाया था, और पूरा मुल्क उनके हवाले कर, पूरा रीजन उनके हवाले कर दिया था। मतलब KPK से लेके ऑल द वे टू बर्मा, जिसको पहले क्या बोलते थे, हाँ बर्मा ही बोलते थे, अब जाके तो म्यांमार बोलते हैं, रंगून
रंगून की गलियों से लेके पेशावर तक हमने पकड़ा दिया था गोरा कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो है। अब रही बात अगर तो भाई बाहर के लोगों को हमने दिखाना है कि हम बड़े हॉस्पिटेबल हैं और मेहमान नवाज हैं, तो भाई अफ्रीकन व्लॉगर्स भी आते हैं, या अगर कोई अब आते हैं, मैंने एक आध देखे हैं, या अगर कोई आए तो क्या उसको भी सेम ट्रीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि गोरों ने ये समझ लिया है और बहुत सारे गोरों ने अपना करियर बनाया ही पाकिस्तान या इंडिया से है, क्योंकि उनको पता है यार यहाँ पे हम चाहे मैं नाम ले सकता हूँ, आई एम नॉट गोना नेम एनीवन, जो कि लिटरली व्हेन दे लैंडेड इन दिस कंट्री दे हैड लाइक 1200 सब्सक्राइबर एंड व्हेन दे लेफ्ट दे हैड 3 लाख 4 लाख। बहुत सारे हैं जो कि यहाँ के होके ही रह गए कि यार हमें जो प्यार यहाँ मिल रहा है वो और दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अगेन प्यार मिलना एक अलग चीज़ है, बट कॉम्प्लेक्स होना वो एक अलग चीज़ है। सिमिलरली इन इंडिया बहुत से लोग इंडिया को कैश करते हैं, पाकिस्तान को कैश करते हैं। इंडिया में तो बल्कि ये भी देखा है कि आपने काफ़ी सारी टिकटॉक्स और रील्स देखी होंगी कि दिल्ली गेट के सामने अगर कोई गोरी खड़ी हुई है तो लोग आके बाकायदा सेल्फियाँ खिंचवाते हैं। और यही चीज़ आपने देखा होगा फैसल मस्जिद में भी हो रही थी, और वो एक कपल जो था गोरा, उनको फिर लोग हरास कर रहे थे और फिर लोगों ने बोला ये अफगानी हैं या माइग्रेंट्स हैं, फलाना ढिमकाना जो भी है। हुआ तो हमारे मुल्क में, राइट, पुलिस तो हमारी होनी चाहिए ना वहाँ पे। ये बिल्कुल होता है। एक और मुझे रील याद आ रही है, उसमें था कि दिस इज़ द व्यू ऑफ अ बीच इन बांग्लादेश, और वो बंदी ने जब कैमरा फ्लिप किया तो सामने सारे धोती में बांग्लादेशी खड़े उसको देख रहे हैं, अब वहाँ बीच पे आराम से लेटी हुई। आई डोंट नो विच बीच इट वाज, बट ये भी एक रील, इफ़ यू गूगल इफ़ यू यूट्यूब यू कैन ईजिली फाइंड इट। तो ये कॉम्प्लेक्स तो है। हम गोरे देख के हम उतावले हो जाते हैं, बावले होते हैं। इनफैक्ट होना इसका ऑपोजिट चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ, और जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं वो कमेंट में जाके इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। दुनिया भर में चीज़ें जो होती हैं, लोकल्स के लिए अलग प्राइसिंग होती है और टूरिस्ट के लिए अलग प्राइसिंग होती है। इसका मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मैं पिरामिड्स में गया था, तेरी ओर वाली शूटिंग के एक दिन बाद लिटरली। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोकल्स का जो टिकट था वो लाइक 30 पाउंड्स था, इजिप्शियन पाउंड, राइट, और जो टूरिस्ट का था वो तकरीबन 100-200 पाउंड का था। लाइक बहुत ज़्यादा फ़र्क था, राइट। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये तो लूट रहे हैं, क्या सीन है। तो उसने बोला कि ये ऐसा ही होता है, क्योंकि बिकॉज यही तो उनकी इकोनॉमी है, यहीं से तो उन्होंने कमाना है। अच्छा, सिमिलरली आई एम फॉरगेटिंग कि एग्जैक्टली वेयर इन पाकिस्तान कोई म्यूज़ियम थी या कोई ज़ू था, उसकी तस्वीर आई थी यही कि लोकल्स की प्राइसिंग 25 रुपये थी फॉर एग्जांपल, और टूरिस्ट की प्राइस 500 रुपये थी। तो लोगों ने लेके लगा दिया, अरे लूट रहे हैं, इतनी मुश्किल से टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट को इस तरह लूटा जा रहा है। अबे टूरिस्ट से ही तो कमाना होता है, और ये पूरी दुनिया में होता है। तो ये कोई अनोखी अचंभे की बात नहीं थी, बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि उसके लिए तो $1.5 ही है ना। अगर 500 रुपये भी आप टिकट लगा रहे हो गांधी गार्डन पे, बाय द वे द जू इन कराची इज कॉल्ड गांधी गार्डन, तो वो अगर 500 भी लगा रहे हो तो उनको तो भाई कितना $1.5 पड़ा, तो उनके लिए तो इट्स पीनट्स। तो आप उनसे ले सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। तो दुनिया भर में ये होता है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ टूरिज़्म बहुत था। आपने 70s तक की पिक्चर्स देखी होंगी, कराची फ्रेंच बीच के क्या हालात होते थे, या फिर इवन अफ़गानिस्तान में जो हिप्पी ट्रेल थी और लोग आते थे। सो इट वाज वेरी कॉमन इन दोज टाइम्स। अब फिर बीच में इतनी बड़ी हमारी जो जिहादी वेव चली है 80s से लेके और फिर ऑल द वे टिल 2015-16 ऑनवर्ड्स, अफगान वॉर, दिस एंड दैट। तो उसके बाद एक नहीं 2 नस्लों ने तो देखे ही नहीं टूरिस्ट कभी। आई पर्सनली रिमेंबर, रात भाई आपको याद है जैनब मार्केट में दुकानों पे रशियन लिखी होती थी, बहुत आते थे, है ना। हम भी खड़े होकर देख ही रहे होते थे, ज़ाहिर हम बच्चे थे, हम फैसिनेट होते थे, इतनी खूबसूरत लोग आते थे। सो जैनब मार्केट में जो है लेदर जैकेट्स इन पाकिस्तान आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई नो पीपल जो यहाँ से बैठ के जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं, और सितंबर अक्टूबर में तो बात ही नहीं करते, इतने ऑर्डर लगे हुए होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और दे उनको। सो ये रशियन टूरिस्ट आते थे लिटरली। आप अगर इफ़ यूर फ्रॉम कराची एंड इन योर टीन्स और 20s, आप अपने पेरेंट्स से पूछें, कैंट स्टेशन जो है जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने होटल प्लाजा वॉज फुल ऑफ रशियंस ऑल द टाइम, और वहाँ पे बाकायदा जितने भी बोर्ड थे वो रशियन में लिखे होते थे, राइट। और अब तो खैर वो बस अड्डा बन गया क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने ख़रीद लिया, क्योंकि अब तो टूरिस्ट आते नहीं हैं, तो अब वहाँ पे उल्टी एक्टिविटीज़ ही चल रही हैं। पीछे उसके वाइन शॉप थी, आई थिंक इट्स स्टिल देयर, और वहाँ रशियंस खरीद रहे होते थे और होटल जा रहे होते थे।
और फिर वो रशियंस वो आते क्यों थे, वो समर टाइम या विंटर टाइम में आते थे, जैकेट्स खरीद खेप करते थे, बेसिकली दबा के वो खरीदते थे या ऑर्डर्स प्लेस करते थे, एंड दे वुड टेक दोज जैकेट्स बैक टू रशिया। इतना टूरिस्ट आता था, यहाँ आपकी सोच है। सो अप एंड आई एम टॉकिंग 1994-95, फिर 96 ऑनवर्ड्स फिर ये काम होता रहा और फिर 9/11 के बाद तो didn't see anyone. In fact, if you go to ये होटल प्लाजा वाला, वहाँ पे काफ़ी सालों के बाद तक देयर वर सम रशियन इम्प्रिंट्स जो दुकानों में सॉरी दीवारों पे वहाँ पेंट हुआ था अबाउट अ स्टोर और समथिंग, तो वो आज भी प्रिंट था। अब खैर आई हैवंट बीन टू दैट स्ट्रीट इन अ वाइल, ड्राइव करके गया हूँ तो नज़र नहीं पड़ी, वहाँ बहुत अरसे तक लिखा रहा। आई नो सो माई ओन वेरी कज़न जो कि हुज वॉज अ लेदर मर्चेंट टू दिस डे, वो आज भी लेदर वालों के साथ ही काम वाम करता है, स्पीक्स फ्लुएंट रशियन, फ्लुएंटली। कैसे सीखी? इसी तरह दुकान पे खड़े खड़े, जाना मार्केट में दुकान थी, फिर कभी शेरेटन बिफोर मोवन पे वाज अ शेरेटन, वहाँ पे भी लेदर की शॉप्स थी, ही यूज्ड टू वर्क देयर, तो ही स्पीक्स फ्लुएंट रशियन। और अब वो जो काम यहाँ करता था, अब वो ग्लोबल विलेज दुबई में करता है, क्योंकि वो सारे रशियन अब जाते हैं दुबई, और पाकिस्तान की सारी जैकेट जाती हैं ग्लोबल विलेज में। 6 महीने का वहाँ पे स्टॉल लगता है और वहाँ पे धड़ाधड़ वो जैकेट्स बेचते हैं। 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने आराम करते हैं, लाइक माशाल्लाह इतना बिजनेस होता है। तो सोचो यही बिजनेस यहाँ हो रहा होता तो क्या सीन होते, बट नहीं होता, राइट। खैर प्रॉब्लम पॉइंट बीइंग 96 ऑनवर्ड्स एक पूरी नस्ल ने तो देखे ही नहीं ना गोरे चलते फिरते बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। अरे मकई खरीद के खा रहे होती थी लड़कियां, लाइक सम ऑफ देम वुड बी इन अ स्कर्ट। इवन हमने काफ़ी सी थ्रू कपड़े भी देखे, बिकॉज दे डिडंट नो कि वो कहाँ है, वहाँ पे सारे लाइन लग जाती थी, फिर उनको अंदाज़ा हो अच्छा दिस इज़ अ नो गो एरिया। चाइनीज़ तो खैर अब ये एक तो दूसरे किस्म का इन्फ्लक्स है, पहले अलग इन्फ्लक्स था चाइनीज़ का। आई रिमेंबर मेरे पास वो एक टोपी होती थी, उसमें सोलर लगा हुआ था, और मैं क्लास आई वॉज इन ग्रेड 3, 1993-94 की बात है। टोपी थी, उस पर यहाँ सोलर लगा हुआ था, और टोपी का जो ये हुड होता है उस पर गैप था, और उसमें एक पंखा लगा हुआ था, और पंखा मुंह पे हवा देता था। सो अगर आप धूप पे पहन के निकलो, मुंह पे हवा आ रही होती थी। एंड आई वॉज द कूलेस्ट डूड इन माई स्कूल बिकॉज नो वन एल्स हैड इट। माई ब्रदर मेट सम चाइनीज़ गाय, उसने उनको गिफ्ट किया था। सो इस तरह के बड़े सीन होते थे। वी वुड गेट सच क्रेजी शिट लाइक गेम एंड वॉच दिस एंड दैट, वो चाइनीज़ में होते थे, या कैसेट्स लर्न हाउ टू स्पीक चाइनीज़ और लर्न हाउ टू स्पीक फ्रेंच, BBC की कोई ना कोई गिफ्ट करके चला जाता था। खैर बड़े सीन्स थे। तो अब चूंकि देखे नहीं है ना, तो वो कॉमन साइट नहीं है, तो जो नज़र आता है ना, एक आध नज़र आता है, तो फिर लोग आपे से बाहर होते हैं, ओ माय गॉड गोरा है, इसने हमें, दे हैव ग्रेस्ड अस विद द प्लेजर ऑफ देयर कंपनी, तो आइए जी बन कबाब भी खाइए, ये भी खाइए, वो भी खाइए, और फ्री कर करके उनकी आदतें ख़राब की हुई हैं। उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल बेस्ट है, हम दुनिया भर में जाते हैं, क्यों पैसा खर्च करें। वैसे ही गोरे जितने भी व्लॉग्स बनाते हैं ईस्ट एशिया में आके, वो यही दिखा रहे थे ना, $5 में दिन गुजारना, $10 में दिन गुजारना, एंड देन वो पूरा कैलकुलेशन चलती है कि मैंने रामेन नूडल खाए, वो इतने के थे, फिर मैंने ये किया, फिर ये किया, स्कूटी बाई की, ये किया, $10 में। यहाँ तो उनका खर्चा ही नहीं होता। तो ये गलत प्रैक्टिस है। आप और उन व्लॉगर्स के थ्रू, अच्छा हम एक और चीज़ हम ये समझते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान का, एक तो हमें इतने दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत है कि यार हमें चूंकि पाकिस्तान का अच्छा इमेज करना है, तो हम सब फ्री खिला देंगे, अज्यूमिंग कि वो जो गोरा आया है उसके फॉलोअर्स गोरे हैं। अरे उसके तो फॉलोअर ही नहीं थे, वो तो 300 सब्सक्राइबर इस मुल्क में आया था, उसके सारे फॉलोअर सादिक भाई, राशिद भाई, मोमिना बहन, यही लोग हैं, और यहीं के लोग देख रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक ही इज़ प्रोजेक्टिंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। ऐसे और भी ख़वातीन भी आई थी इस मुल्क में, जी पॉजिटिव इमेज जा रहा है। अबे किसको जा रहा है? उसकी सारी फॉलो, कमेंट सेक्शन देख लो ना, साजिद माजिद यही चल रहा है। ऐसा ही है भाई रात, तो कौन सा पॉजिटिव इमेज जा रहा है? कौन पोलैंड में देख रहा है उसको, या कौन उसको जॉर्जिया में देख रहा है? अरे सारे देखने वाले यही हैं, मंजन अजीब किस्म का। तो ये गलत रविश है। ठीक है, यू कैन बी हॉस्पिटेबल and still charge them. You can be nice to them and still, जो कि आपका एक राइट बनता है वो आप चार्ज करें। ये थोड़ी कि आप बस गोरी चमड़ी आई तो उल्टे लेट गए, चले हाँ भाई जो करना है करें, ऐसे थोड़ी होता है। और अगर यही चीज़ है तो फिर यही प्रिविलेज आप किसी श्रीलंकन को देंगे, या किसी ट्रिनिडाडियन को देंगे, किसी नाइजीरियन को देंगे, या तो फिर सबके लिए करें, और फिर कब तक करें? तो ये गलत रविश, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो
again, you can be nice but also be on your own terms. This is my argument. और ये अज्यूम करना कि जी हमारा अच्छा इमेज दुनिया को जाना चाहिए तो फ्री खिला के नहीं जाना चाहिए. अच्छा माहौल पैदा करोगे खुद ही इमेज अच्छा बन जाएगा यार. दूसरे मुल्कों ने क्या फ्री खिला खिला के अपने इमेज अच्छे किए हैं. उन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अच्छा मुल्क दिया हुआ है, सेफ्टी सिक्योरिटी दी हुई है, वो खुद ही अच्छे हो गए. आप सेफ्टी सिक्योरिटी दो. अगर कोई टूनीशियन खातून आके यहाँ पे सड़क पे अकेली घूमती है और वो आके जाके 10 लोगों को बताती है कि यार आई हैव नेवर फेल्ट सो सेफ इन माई लाइफ जितना मुझे कराची में चल के मिला, तो ये आपका पॉजिटिव इमेज है. ये थोड़ी कि मैंने गोलगप्पे मुंह में ठुसा दिए. वो तो आप बात का तो दिखाई नहीं रहे, जो जुलाब लगे उसको वो तो दिखाते ही नहीं हो आप. जी बन कबाब खिला दिया, अच्छा इमेज बन गया. वो कोई वेजिटेरियन है तो क्या खिलाओगे, बिरयानी ठूसोगे उसके मुंह में. सो आई टोटली एग्री विद यू. इज्जत दें लेकिन इतना ना बिछें और इक्वल टर्म्स पे चीज़ें रखें. मेरा तो ये मानना है इक्वल टर्म्स पे चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो भी आपको अगला ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा. आप बिल्कुल बिच जाओगे ना, वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, लगा भाई ये तो ऐसी ही है बस. सो ये हमें चीज़ समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए. इज़्ज़त दें मगर अपने आप को, अपने काम को भी पहले इज़्ज़त दें ना. ये नहीं कि फ्री में गोलगप्पे खिला रहे हैं. बाकी आई होप यू डू वेल और आई होप आपके ज़रा रेसिज्म इनकाउंटर्स जो हैं, रेसिस्ट इनकाउंटर्स कम हो जाएं, बेहतर हो जाए इन द सेंस के लाइक ना हो, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए. ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू. ऑलराइट जी, नेक्स्ट वन सेज सीकिंग गाइडेंस एंड होप अमिट्स लाइफ्स चैलेंजिंग a cry for help. Oh, this is a recent email. So पिछली वाली भी जुलाई की थी. Respected Mr. Akram, I hope you're fine and in good health. I'm Miss X from Punjab, a girl who's in her late 20s, unmarried and under a lot of pressure and hardships. So I would be ranting about all those in this email and I apologize in advance that it's going to be a long email. It's fine. Long jitni bhi ho, koi masla nahi hai. Information puri ho. That's the thing. Let's just start from my family's economic and emotional state. I belong to a middle class family whose father was a government servant and we lived from hand to mouth our entire life. On top of that, my parents consider that if we pay the fee of school, we are done with parenting. But I was and still am always infuriated with this attitude of theirs, and especially my father, who was a very well-read man, but still wasted my mother in mere house chores and under his self-centered life, where he hasn't married a life partner but married a servant for life who has no rights to get dressed and to enjoy other basic luxuries of life. That's so sad, man. Usually it is said that fathers care more for their daughters, but mine was not even that, which made me fall more towards my mother. She, on the other hand, is another story. The typical behavior of mothers prioritizing more towards sons is quite evident in her attitude, and for a very long period of time, approximately 13 or more years, I have been continuously feeling this attitude of hers. On the other hand, I'm a gender dysphoric patient, and I guess that is enough to say on record, as people consider it an utterly negative thing. So that too is a fight that I'm fighting inside and outside me for all my life, and man, it's killing me. Let me tell you one thing to people from your platform, that nobody ever wants to be a gender dysphoric, and never ever ever. Likewise, I'm a girl living in South Asia, having dark brown skin, so I face a lot of criticism on that front too. My relatives always point out these negative things of mine and make me and my parents ashamed. I'm such a disgrace to my family that multiple times my parents separately have warned me if anything happens to them, I would be the reason. On top of that, my parents consider that I'm still a child who has no sense of making any sound decision for myself and any decision I take. They are there to criticize me. Even if I buy a shoe of my own choice, a cloth of my own choice, they are there to do the non-stop criticism. I've been for the past 2 or 3 years trying to start freelancing, as the only solution I can come up with to my problems is staying away from my family and then exploring and resolving different conflicts that I have developed inside and outside of my body. But I've been miserably failing to start a career in freelancing, and the reason which I found was I became the target of shiny object syndrome, and all the emotional and psychological ups and downs I have been through made me an impatient person. Now, if I say that the only reason I have been alive and haven't committed suicide is that I have faith
that there is a life hereafter, and I don't want to end up in hell. I firmly believe that things will go right, but I am tired now. I want a solution to things. My parents, on the other hand, are buzzed to marry me, and they are forcing me, torturing me mentally and physically. I became numb to all the situations going on that I don't feel alive, but I cannot live this forever. I need a change. I've been listening to you on and off, and I found you a person who has the exposure and who's open minded. Please elaborate on what are possible solutions. What should I do? I've been trying to get out of this home, but all in vain. I also want to go abroad, but again, my parents wasted precious 5 years of my life. अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और वो मेरी बात नहीं सुनते. One thing I forgot to mention is that I'm also a well-read person, having masters from a reputable institute, and I used to have a shine in my eye and a bird having two bright wings that it cannot be caged type of attitude. But in all of this mess, I'm losing all of my shine. So far, so that I can't even now clear an interview. It's a cry for help. Please respond to my email. Alright, तो ये आपने email सुनी. एक खातून है, late 20s, unmarried. काफ़ी प्रेशर है फैमिली की तरफ से. A father who is extremely self-centered. It's like a very staple पाकिस्तानी फैमिली. वो होता ना कि अगर एग्जिबिशन हो दुनिया की अबाउट पेरेंट्स के लिए, या पाकिस्तान का जो बूथ होगा ना, लाइक हाउस होल्ड का अगर एक एक्सपो लगे कि दुनिया भर में हाउस होल्ड कैसे होते हैं, तो आई थिंक दिस वुड बी अ स्टेपल पाकिस्तान का हाउस होल्ड, जहाँ पे माँ जो है वो सिर्फ एक अंडरपेड, या अंडरपेड में भी तो पेड होती है, अनपेड स्लेव है जिसका काम सिर्फ बर्तन धोना और खाना पकाना और बच्चे पैदा करते रहना है. और बाप जो है एक टिपिकल नाक पे चश्मा रख के अखबार पढ़ने वाला, और नज़रें मिला के बात भी नहीं करते ना, जो कि बस दे हु आर जस्ट लाउड, और वो कहते हैं बस मुझे सब पता है और तुम सब फजूल लोग हो. सारा उनका जो है अकड़ अपने उसमें ही रहती है. दे वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है. आप माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है, यू आर एक्सट्रीमली वेल रेड, बट द फैक्ट दैट आप कोई इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते, उसकी वजह यही है बिकॉज यू कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज, अ लॉट ऑफ वेट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स. और चूँकि शुरू से आपको ये बताया होगा कि यूर अ नो बडी एंड यूर अप टू नो गुड एंड यूर नॉट वर्थ एनीथिंग. तो वो जो एक कांस्टेंट साउंड अंदर बजता होगा ना आपके दिमाग में कि तुम एक फेलियर हो, तो वो फेलियर का जो डर है वो आपको मजीद फेल करते जा रहा है. सो यूर इन अ कांस्टेंट लूप ऑफ फेलियर, और वो जिस चीज़ का फेयर है वही और आया जा रहा है. सो इट्स आई एम नॉट गोना से कि इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ योर माइंड सेट. ऑफ कोर्स इट्स कार्व्ड because it's scarred your entire childhood, your entire youth. You've been told and raised fingers. अच्छा, एक ये चीज़ जो है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है तो फिर उसके लिए आपके पेरेंट्स को शर्मिंदा किया जाता है. डूड, इफ इट्स अप टू मी, आई विल फकिंग न्यूक दिस कंट्री, ताकि एक नई थॉट निकले, नए लोग आए, नई थॉट हो. इस चीज़ से बाहर है. लेकिन अब ये क्यों ना हो, मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ बड़े अरसे से, एंड आई कीप जस्ट ADHD हो जाता है. अभी देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है, एज वी स्पीक पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच चल रहा है, पाकिस्तान इज़ बैटिंग. और अगर आप ये मैच पाकिस्तानी चैनल्स पे देखें तो क्या ऐड आते हैं, सिर्फ मोबाइल फ़ोन के ऐड आते हैं या फिर रंग गोरा करने वाली क्रीम. 3 क्रीमों के तो आ रहे हैं. ओलिविया का आ रहा है, और वो कौन सा है, अजूबा का आ रहा है, और एक और कोई है. 3 आ रहे हैं. गोल्डन पर्ल. मतलब इस पुल की आप प्रायोरिटी देखेंगे, या तो फ़ोन पे पूरा घंटा बात कर लो या रंग गोरा कर लो. अब यही आप IPL के दिनों में एड्स देखें कि किस तरह के एड, स्टार्टअप्स के एड आते हैं. पर फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी तो शर्टों पे देख लेना आप किस कंपनी का लगा हुआ है. आप साइड पे जो बाउंड्री पे जो वॉल है उस पे देखें कौन से ब्रांड्स लगे हुए हैं. वो डिक्टेट तो गलत वर्ड है, वो दिखाती हैं, इट्स लाइक अ ट्रेलर कि मुल्क किस तरफ जा रहा है. राइट, यू आर व्हाट यू ईट ना. तो वो जो चीज़ें छपी हुई हैं आसपास वो दिखाती हैं मुल्क के हालात क्या हैं. यहाँ पे क्या जी, रंग गोरा कर लो. किसके लिए गोरा कर लो, क्यों कर लो गोरा? तो ये हालात हैं. इसलिए क्योंकि घरों में ये माहौल है और ये चीज़ बढ़ती जा रही है. शर्म आनी चाहिए. वैसे तो अब जो ख़वातीन आती हैं उन एड्स में, वैसे वो बड़ी वोक हैं अपनी चीज़ों में, मगर फिर वो इस तरह की चीज़ों को पुश भी करती हैं. आई थिंक इनको ऑल इन ऑल बॉयकॉट करना चाहिए इन चीज़ों का कि भाई क्या बकवास है ये.
बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब आपको शर्मिंदा, आपके पेरेंट्स को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आपका रंग काला है। रही बात जेंडर डिस्फोरिक होने की, अभी मैं उसी के ऊपर पढ़ रहा था कि उसका कोई रीज़न अभी तक एक्सप्लेन नहीं है। कुड हैपन व्हेन यू आर इनसाइड योर मदर्स वूम, या डिस्फोरिया में ये होता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वेयर यू आर डिस्ट्रेस्ड बीइंग हु यू आर एंड यू वांट टू behave like the other gender. This is what I've read so far. Again, जैसा कि आपने कहा कि nobody wants to be that, and it's just there. So that is obviously also triggering, and a lot of things are not happening because you're fighting so many battles at the same time. रही बात फ्रीलांसिंग की, अच्छा देखें, अब इसमें मैं आपको अगर सोल्यूशन की तरफ आऊँ तो सोल्यूशन ये हर किसी के लिए तो नहीं है कि घर छोड़ के भाग जाए, राइट। इट कुड बी एक्सट्रीमली रिस्की, गलत हाथों में आ गई। एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे वैसी औरतों की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू, somebody wrote to me, somebody used to write to me 5 years ago कि उसके घर में यही सिचुएशन थी, एंड उनका एक और मसला था, ठीक है ना, विद रिगार्ड्स टू जेंडर। तो अब ये था कि आई वांट टू लीव द हाउस, दिस दैट ये वो, और फिर एक दिन वन फाइन डे आई गॉट अ मैसेज कि मैंने छोड़ दिया है, बट आई थिंक आई वोंट लास्ट लॉन्ग बिकॉज ट्रेसेस हैं मुझे ढूंढने के। एंड देन उसके बाद इट्स बिन 5 years, आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम द गर्ल एवर अगेन। कराची का ही सीन था, यू नेवर नो उसको क्या हुआ होगा। इफ़ शी वॉज अ फैन, फॉलो करती थी तो शायद वो अभी भी करती होगी, शी कुड हैव जस्ट रिटन हाई, आई एम स्टिल द सेम पर्सन, और अब मैं यहाँ हूँ, वट एवर। नेवर हर्ड फ्रॉम हर अगेन। मुझे तो खैर याद भी नहीं इतना कौन सा अकाउंट था, क्या इतने मैसेजेस आते हैं, बट इमेजिन व्हाट कुड हैव हैपेंड टू हर। पेरेंट्स ने क्या किया होगा, बलि चढ़ा दिया होगा, ज़बरदस्ती किसी से शादी करा दी होगी, या फिर ये कि ऑनर किलिंग, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो इट्स लाइक अ वेरी मेसी प्लेस। तो मैं मशवरा नहीं दे सकता आपको कि आप घर छोड़ के भाग जाएं। बट एक चीज़ जो है वो ये है कि एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स। एज हार्ड एज इट मे साउंड दैट यू डोंट हैव अ सोल्यूशन, only you have solution. There's going to be no help from anywhere. कोई फरिश्ते नहीं ऊपर से आएंगे to sort things out. It has to come from within you. I'm not saying that you're not trying, या आपकी will नहीं है, या आप चाह नहीं रही हैं. I'm sure you do, but ये जो भी होगा ये आपके अंदर से ही आएगा. You have to take yourself outside your body and treat yourself like someone you're responsible for the well-being of that person. So you have to parent yourself from the outside कि यार अब यही है मेरे पास और मुझे इसका ख्याल रखना है। सो जिस तरह पेरेंट, अच्छे वाले पेरेंट्स, नॉट योर पेरेंट्स, किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं अपनी औलाद को, राइट। दे कवर देम, मौसम से बचाना, खाने पीने का ख्याल रखना, हर चीज़ देखना, अगर भाग रहा है तो देखना कोई शार्प एजेस तो नहीं है, बेबी प्रूफिंग करना। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रीट योरसेल्फ कि यार आपकी वेल बीइंग आप ही दुरुस्त कर सकती हो और आप ही के हाथ में, कोई और नहीं करेगा। एंड इट्स पॉइंटलेस टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। हाँ, बिस्तर मर्ग पे मैं जनरली बात कर रहा हूँ, बिस्तर मर्ग पे सबको फिर याद आते हैं अपने जुल्म, मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि अब अल्लाह मियाँ के पास जाना है। ईमान तो है अंदर, और पता है आगे रोस्टिंग होगी मेरी, राइट। मैनू पुत्र मैनू माफ़ कर दे, और ये हमने बहुत देखे भी हैं, सुने भी हैं, एक्सपीरियंस भी किए हैं फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड, कि जी पूरी ज़िंदगी रगड़ के रखा, फिर हम माफ़ियाँ मांग के चले जी, क्योंकि पता है जी ये जो जना अस्पताल में आया हूँ, अब मैं यहाँ से सीधा कब्रिस्तान ही जाना है, यहाँ से घर नहीं जाना यहाँ से, राइट। तो ये आएगा ख्याल, कुछ को नसीब होता है, कुछ को ये भी नसीब नहीं होता, वो आखिर वक्त तक अकड़ में रहते हैं। बट they're not gonna mend your life at all because they clearly don't even like you. Love तो बहुत दूर की बात है। होता ना कुछ कपल्स में कि like I love you but I don't like you. Like you have to like someone. क्या यार ये अच्छा इंसान है, you know, I like this person, इसकी personality अच्छी है, इसकी सोच अच्छी है, अपकीप सही है, सब वगैरह वगैरह। But they don't even like you. Love तो बहुत दूर की बात है. So they don't give a shit about you. You can be dead tomorrow and they will be like, हाँ ठीक है जी, हो गया, खैर अच्छा है, बोझ गया, 2 रोटियां कम पकानी पड़ेंगी. That's how they're treating you, judging by your email. और बिल्कुल इस तरह के पेरेंट्स होते हैं. They don't give a shit. South Asian parents तो वैसे ही they don't give a shit about their daughters.
ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल है और सबको पता है। तो इस केस में यू हैव टू बी योर ओन पेरेंट, और ये बहुत सारे बच्चों पे ही आती है। उनको वक्त जो है ना बहुत जल्दी अपना ही वालदेन बना देता है, बिकॉज दे डू रियलाइज कि यार हेल्प और कहीं से नहीं आनी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर आपको फ्रीलांसिंग का शौक है, इफ़ यू थिंक दैट समथिंग यू कैन एक्सेल इन, यू नीड टू लुक एट इट एज इफ़ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन यू। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ख़ास तौर पे लड़कियों को, कि अपनी माशियात, अपनी इकोनॉमिक्स अपने हाथ में रखें, क्योंकि वो लेवरेज है, राइट। आई कैन लेवरेज, एक अमीर आदमी जो है पावरफुल क्यों होता है? बिकॉज ही कैन लेवरेज हिज मनी। वो गुंडों को पैसे दे के आपको पिटवा सकता है, वो अपना कोर्ट का केस आगे पीछे करा सकता है, फाइल आगे, अगर काम फंसा हुआ है फाइल पे पहिए लगवा सकता है। लेवरेज करते हैं पैसे को, राइट। मेरी पावर है, मैं इसको लेवरेज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ नोन पर्सन, मैं एयरपोर्ट पे अगर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया लेग स्पेस वाली कुर्सी है तो दे दे, तो वो दे देते हैं, होती है तो दे देते हैं, ख्याल रखते हैं। सो आई लेवरेज माई फेम। सो यू नीड टू हैव समथिंग टू लेवरेज इट, राइट। कुछ होना हाथ में कि यार ये पत्ते मैं देता हूँ तू ये दे, ट्रेडिंग। जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है, पल्ले ही कुछ नहीं है, और आप डिपेंडेंट हो गए, जी रोटी यहाँ से आनी, कपड़े यहाँ से आने, जूते यहाँ से आने, आपकी कोई इज्जत ही नहीं करेगा। यू गेट इट। जितनी खवातीन सुन रही हैं, चाहे आप अच्छी शादी में हो, बुरी शादी में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, माँ हो या बच्ची हो, मेक श्योर यू नीड टू हैव योर ओन इकोनॉमिक्स एट इन योर हैंड। जितना कम हो, ज़रूरी नहीं कि सबने बिलियनर नहीं बनना, भले आप 10,000 कमाएं, मगर 10,000 वो आपके हों जिस पे आप डंके की चोट पे कह सके कि हाँ ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया, राइट। क्योंकि फिर आपको कोई फूल अराउंड नहीं कर पाएगा। अभी क्या होता है, अब आपकी जो वालदा हैं वो क्यों स्लेव बनी हुई थी? वो इसलिए स्लेव बनी हुई थी कि उनके पास 2 कौड़ी पैसे नहीं थे, क्योंकि ये देते नहीं थे। अच्छा, इसमें अमीर गरीब की बात नहीं है। आई नो, ज़्यादा बोलूँगा तो भाई, आई नो अ बिलियनियर फैमिली जो अपनी बहू से जो है ना हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ का हिसाब लेते हैं, हंड्रेड्स, राइट। 1,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, लाख भी नहीं। और बिलियनियर फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, बिलियनियर विद अ फकिंग बी फॉर बॉय, राइट। तो इमारत जो है ना, गुर्बत जो है, सॉरी, एक बड़ा अच्छा जावेद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। गुर्बत हर जगह से चले थी, सबसे आखिर में दिमाग से जाती है। लाइक आपके जूते चेंज हो जाएंगे, लुई विटॉन फेरेगामो आ जाएगा, शनैल आ जाएगा, राइट। लुबिटॉन्स पहन लेंगे आप, आपके ऊपर कपड़े अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, आप लॉरा पियाना पहनने लग जाएंगे, फुल ओल्ड मनी स्टाइल। आप यहाँ से आपकी शर्ट भी जो है हैकेट पहनी हुई आपके भाई ने, राल्फ लॉरेन हो जाएगी, सब हो जाएगा, चश्मे भी आपके रेबैन आ जाएंगे। मगर गुर्बत सबसे आखिर में यहाँ से जाती। अगर आप तंग नज़र होंगे और आपके अंदर वो देने वाली सिफ्त ही नहीं होगी, और आप ये देखोगे यार मेरे एम्प्लॉय कितनी कप चाय पी रहे हैं, और आप उस पर नज़र रखोगे, तो वो लानत है आप पे। तो गुर्बत हर जगह से चली जाती है, दिमाग से सबसे आखिर से जाती है। सो बिलियनर होंगे बिलियनर, मगर यहाँ से चूँकि गरीब हैं इसलिए हिसाब किताब करते हैं। आई एम नॉट सेइंग हिसाब किताब नहीं करना चाहिए, मगर 100-200 रुपये का भी कोई हिसाब करता है। खैर, तो आपके पास चूंकि इकोनॉमिक्स नहीं है तो आप कुछ लेवरेज नहीं कर पाती, उल्टा आप बोझ हैं, और बोझ की कोई इज्जत नहीं करता। जिस तरह पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुनिया से पैसे मांगते हैं, यार 1 बिलियन तू दे दे, 2 सऊदी वाले रख लें, 3 जो हैं यूएई वाले भी स्टेट बैंक में रख लें, हमारी मशीन चल जाए। अब चूंकि देखिए, मांगने वाले की कभी इज्जत नहीं होती। आप सड़क पे भी जाते हैं ना, मांगने वाला बेचारा आपके शीशे पे टक 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 करता रहता है, आप उसको देखते भी नहीं हो। ऐसे ही मोइस भाई, देखते ही नहीं हो कि लाइक यू डोंट इवन एग्जिस्ट, राइट। जो अनडिजर्विंग होता है, ऑफ कोर्स, जो डिजर्विंग है उसको तो आप कर ही देते हो। जो आपको लग रहा है कि हट्टा कट्टा या ये नशा करेगा, आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते दैट ही और शी इज इवन देयर। तो मांगने वाले की कभी इज्जत नहीं होती। तो आपने जो है अपने आप को, यू नीड टू टाइटन अप योर बेल्ट, और आपने ये फिगर आउट क्या, आपने बस ये तहैया करना है, यू हैव टू पुट योर फुट, बैंग इट ऑन द फ्लोर, कि यार आज से मैं ही मेरे लिए हूँ, और मैंने ही अपने आप को संभालना है, और मैंने ही अपने आप को आगे लेके जाना है। तो ये होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। फ्रीलांसिंग का आपको शौक़ है, बिल्कुल करें। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लोग चूना ही लगा रहे होते हैं, ठीक है ना जी, ये रसीदें दिखा के जी आज इसने इतना कमाया। खैर, सबका अपना अपना है। ढूंढने अच्छे लोग मिल जाते हैं। कोई अगर यहाँ पे सुन रहा है, कमेंट में कोई वसीला बन जाए, रास्ता दिखा दें, हेल्प नहीं असिस्ट कर दें। हेल्प तो
नहीं अच्छा चीज़ नहीं, मतलब असिस्ट कर दें, आप बता दें अच्छा भाई ये तरीका है। और इंटरव्यू में भी जो है जाएं तो अपना माजी, अपना घर, अपना सब कुछ जो है बाहर रख के जाएं। अगेन ईजियर सेड देन डन, कहना बड़ा आसान है, होता नहीं है। फेयर निकाल दें फेलियर का। जिस दिन आप फेयरलेस हो गई ना, आप चीती हो जाएंगी इस दुनिया में। हम फेयर से ही कंट्रोल होते हैं, राइट। हम अपने मुल्क की अगर देख लें मिसाल, फेयर से कंट्रोल किया हुआ ना हमें, डरा के रखा हुआ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यहूदी आ जाएंगे, ये आ जाएगा, कौन आएगा यार यहाँ पे, मतलब एक रफ नेबरहुड में कौन जाता है यार, जहाँ पे कुछ करने को ही नहीं है वहाँ पे कौन आएगा। बट फेयर से रखा हुआ है। तो इसी तरह फेयर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप फेयरलेस हो जाएं। और आप बस यही सोचो व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन। ज़्यादा सारा नो बोलेंगे ना, जान से तो नहीं मार देंगे, गोली तो नहीं मारेंगे। जाएं, एक इंटरव्यू दें, यू विल फक अप लेस। एक और दें, यू विल स्क्रू अप लेसर, देन वन डे यू विल जस्ट एस इट, एंड दैट्स इट, दैट्स गोना बी द की। और चूंकि आपने जहन में ये ठान लिया है अब कि यार अब मैंने ही करना है, तो फिर आपका जो ये 180 डिग्री शिफ्ट है ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इट्स ऑल इन द माइंड सेट। अपने ये सब चीज़ें, ये वाइट नॉइज़ है। और टीवी नहीं, रात को पीटीवी की ट्रांसमिशन ख़त्म हो जाती तो वाइट नॉइज़ आती थी, राइट। ये वही है, अम्मी अब्बू के ताने, रिश्ते, रंग काला है, दिस दैट, दीज आर ऑल वाइट नॉइज़। सो यू नीड टू राइज अबव दैट। फ्रीक्वेंसी होती है ना आवाज़ों की, इंसान फ्रीक्वेंसी सुनता है 440 से लेके 20,000 तक, ऐसे ही है। तो आप अपने आप को 21,000 पे सेट कर लें कि मुझे ये आवाज़ें ही नहीं आती, मेरी फ्रीक्वेंसी ही अलग है। आई हैव रिजन अबव दिस नॉनसेंस, आई हैव रिजन अबव दिस बेसिकली, राइट। क्योंकि ये आपको जीते जी मार देंगे। यूर लाइक इन योर 20s, अभी तो आपने 50 साल आराम से पड़े हुए, और एक्सट्रीमली लाइक 10-12 साल इफ दे कंटिन्यू टू टॉर्चर यू लाइक दिस, जाहिर है दिमाग ख़राब हो जाता है इंसान का। सो यू नीड टू एस्केप द मैट्रिक्स। ये अभी आप मैट्रिक्स में फंसी हुई हैं, इसको एस्केप करना है। हाथ में 4 पैसे होंगे, you'll be able to have some decision। चुपके से बाहर अप्लाई करें, पढ़ाई के लिए जाएं, मास्टर्स करें, एंजॉय करें लाइफ, यहाँ से निकले। ये तो जेल है और दोज़ख है, और इसके बाद क़यामत में हिसाब नहीं होगा, मेरा ये मानना है। हमारी हो गई दोज़ख इधर ही। सो अल्लाह खैर करे। बाकी दुआएं आपके लिए बहुत सारी। और ये आपने बहुत अच्छी चीज़ की, दैट यू हैव फेयर ऑफ गॉड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ज़रूरी है ज़िंदगी में, इट कीप्स यू इन चेक। और सुसाइड इज़ नेवर एन ऑप्शन, इवन इफ़, जो भी सुन रहा है, इवन इफ़ यू डोंट बिलीव इन गॉड, ठीक है, आई होप यू डू, बट इफ़ यू डोंट, सुसाइड इज़ स्टिल नॉट द आंसर। उससे होता ये है। और अभी देखें रिसेंटली सुसाइड हुई, तारिक जमील साहब के बेटे ने सुसाइड कर ली। अगेन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू डिस्कस, क्योंकि हमें दीनी साइड से ही बताया जा रहा था कि लाइक दीन से दूरी, दीन से दूरी। दीन से दूरी की वजह से फ्रैक्चर नहीं होता, या उससे नमाज़ पढ़ने से फ्रैक्चर सही नहीं होता। हाँ, आप दुआ ज़रूर कर सकते हो शिफा के लिए, लेकिन दवा भी ज़रूरी है। सिमिलरली मेंटल इलनेस के लिए भी, या मेंटल हेल्थ के लिए भी दुआ तो बिल्कुल ज़रूरी है ऑफ कोर्स, मगर साथ साथ उसका पूरा रिहैब, पूरा उसका काउंसलिंग एंड एवरीथिंग, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज कि हाँ, एंड इट्स ओके टू बी रॉन्ग। मतलब कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो। पहले भाई होता था कि जी तस्वीर खिंचाना हराम है, आज सबके टीवी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, राइट। एवॉल्व हो जाता है ना इंसान, तो इस थॉट को भी एवॉल्व होना चाहिए कि येस, मेंटल इलनेस इज़ रियल, और ये सिर्फ दवा से नहीं, और ये सिर्फ दुआ से भी नहीं हो सकती। इट शुड बी अ कॉम्बो ऑफ बोथ। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो आई एम रियली हैप्पी दैट सुसाइड से एक और चीज़ ये होती है कि अभी पेन एक बंदे में है ना, फिर आप जो है वो 15-20-30 बंदों में वो पेन छोड़ के चले जाते हो, राइट। सो अभी क्या था, सो हुएवर इज गोइंग थ्रू समथिंग, पेन एक ही इंसान के पास है, उसने ईजी वे आउट लिया, और अब उसकी वजह से 20-30-40-50 लोग अफेक्टेड हैं। आई नो सम पीपल जिनके करीबी लोगों ने सुसाइड की, दे स्टिल हैवंट रिकवर्ड फ्रॉम दैट लॉस। वो लाइक देयर ओन कज़न, देयर ओन सन, आई नो सम पीपल, और वो बड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि उसमें देखें, एक होता है हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, मोबाइल छीनते हुए गोली लग गई वगैरह वगैरह। दिस मीन्स कि यार मेरी नज़रों के सामने देयर वाज अ क्राई फॉर हेल्प, और मैं एक्नॉलेज नहीं कर सका, या एड्रेस नहीं कर सका, या मैं उसको उस लूप से निकाल नहीं सका, वो गिल्ट होता है।
या आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त अगर दुनिया से इस तरह चला जा रहा है, अपनी जान ले ले, आप ज़िंदगी भर गिल्ट में नहीं होंगे कि यार मैं उसके साथ ही होता था, हम लोग रोज़ मिलते थे, हफ्ते में 3 बार चाय पीते थे, हाउ कुड आई नॉट सी दिस, या मैं उसकी सिवेरिटी को क्यों नहीं समझ पाया। तो जो सुसाइड करता है ना, वो थोड़ा सा सेल्फिश होता है, और वो अब खुद तो जाता ही है, और वो पीछे 30 लोगों को और कत्ल करके चला जाता है, जिंदा लाशें छोड़ जाता है इस दुनिया में। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये अच्छी बात है कि आपने वो राउट नहीं लिया, और ना ही आपको लेना चाहिए। ज़िंदगी नाम ही लड़ाई का है, और ज़िंदगी में हमें रोज़ सुबह उठना है और रोज़ ज़िंदगी से लड़ना है। ये रोज़ का ये वो है कि हम रीस्पॉन हो गए GTA में। GTA में होता है ना, आपका अगर एक्सीडेंट हो गया, फिर आप ट्रायंगल दबा के रखे, फिर रीस्पॉन, नया मिशन आता है, नया रोज़ का नया चैलेंज है। सो एवरी डे वी वेकिंग अप, इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर अस। कभी हमें स्टोर लूटना है, मैं GTA में बात कर रहा हूँ टर्म्स में, कभी हमें ये करना है, कभी ये मिशन है, कभी रेस है, कभी क्या है। इसी का नाम ज़िंदगी है। For a lot of people out there who are listening to me or watching me right now, you would assume that my life has become very comfortable. It has in many ways, but it's also come with its own set of challenges that I never had before. तो ज़िंदगी नाम ही चैलेंजेस का है, तो सुकून सिर्फ कब्र में, ये बात याद रखिएगा। I wish you well, and I wish you make it out of this alive and in good health and good mental health. अपना ख्याल रखें, and again, whoever is listening out there who might be on the same boat, अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि it's all in your own hands. So you need to like rise above whatever the problem is, उससे ऊपर से ही आना है, नीचे नहीं रहना, वरना वो चीज़ दबा देगी और फिर वो ज़िंदगी भर आपको नीचे ही करती रहेगी, टू द पॉइंट दैट यू लिटरली 6 feet under, and that's not a way to live. We need to stand up, rise against whatever there is, and fight to survive. So inshallah I'll pray for you as well. ख्याल रखें। Alright जी, आज की लास्ट ईमेल, प्रॉपर्टी और ददियाल के मसले। Assalamualaikum Junaid bhai, long time listener and first time writer. I'm stuck in a couple of problems. Not sure if there would be a solution to this problem. Sorry for the long email in advance. I'm 35, living in Europe, and shukar alhamdulillah, my life is all right. It could have been better, but can't complain given the situation I've lived since birth. I'm married and have a 3.5-year-old kid, so I'll start with the background. With my background, I belong to middle class family in Pakistan. My father was someone whose family was only his siblings and parents. He was the eldest son of siblings and practically like a slave to them. He used to earn in Dubai and worked there for more than 25 years, and yet we were never able to keep a car since forever. Yes, because एक तो ये सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है देसी अब्बुओं को कि सारे बहन भाइयों को मैंने पालना है, और उस सारे पलने पालने में अपनी औलाद नहीं पाल पाते। अपनी औलाद सेकेंडरी होती है, दूसरों के प्राइमरी होते हैं। सो मैनी एग्जाम्पल्स कि वो एक कमाते हैं या सारे हड हराम बैठ के खाते हैं। ऑल माई अंकल्स, ऑल इन दिस टाइम सिंस वी कुडंट कीप अ कार, ऑल माई अंकल्स मेड प्रॉपर्टीज एंड एबल टू रेज देयर लाइफस्टाइल विदाउट इवन having a proper career. My father used to visit us once a year for max 20 to 30 days, and almost half of the days he stayed with two pupos who lived in Punjab as they got married in the military. So on the whole, I used to see my father for 10 to 12 days a year tops. For him, his nieces and nephews and his siblings and parents seem to get wishes fulfilled while rest are being ignored. Till 2000, we lived in our Dada's house in 2 rooms floor. My mom was a devoted housewife. I'm the third child of the 5 children she had. The eldest brother spent his life then Nani ke ghar since his school was near to Nana's home, and my mother didn't have any help to raise all children by herself. The second elder brother was a special child, so my mom was continuously looking after her. So that makes me the one who used to help her, and that probably made me a little responsible a little too early in my life. She did everything a mother can do for her children. We have been living since 2000 in my mom's home, which was given to her by my nana. My Dadiyal are the most jahil hypocrite people I've seen. I used to get beaten a lot by Dada uncles for no reason whatsoever, as
used to play as a child. बच्चा था तो थोड़ी शरारतें करता था. Since I was a child without a father living with us, I even got abused, mistreated and molested by my uncles. जब बाप ही बच्चों की इज्जत नहीं करेगा तो दूसरे क्यों करेंगे? My mom suffered the same fate for continuously degradation and mistreatment, and I feel worse about her and her life. My dad spent most of his earning helping his siblings, doing their marriages and even spending on their children. Even though my dad never saved anything, he got fortunate enough to win a reasonable amount of money in a draw in UAE in 2009. With that, he bought a plot next to my mom's house in that we are still living and able to send my elder brother abroad for studies. My brother came first to Europe in 2010. He has been working since 2014. So he did help him make a single story in the plot so we can rent it out and get some amount. यानी वो जो plot अब्बू ने लिया उस पे single story बना लिया. And my father got kicked out from UAE in 2012. Finally, I came to Europe in 2015. It wasn't easy as my father nobody supported me throughout. Then I finished my studies and have been working since 2017. Got married in 19 and blessed with a baby, probably around the same time as your son was born. My elder brother's child passed away in 2019. My mom has been taking care of him since his birth. My little brother didn't have any restrictions from my dad like me, since he wasn't here, so he went into his comfort zone and he was so pampered by my mom that he didn't even study after his intermediate. My mother never used to ask him to do anything. Instead, she said to me to do his work, like submit his form, do his admission, etc. So basically he's almost 30 and has not been doing anything since the last 10 years, and my mom never says anything to him even though I told her many times. And when I used to tell him to do something, she said, who are you to tell him? तुम उसके बाप नहीं हो. She still considers him as his baby. She's doing like the worst thing to him. And surely treat him like one with respect to his needs of food and other wishes. My eldest brother also bought him anything he asks for. Eventually, I stopped telling her since rent of 2 stories were coming, so normal खाना पीना चल रहा था. अच्छा वो 2 story बन गया तो उसका किराया आ रहा था. My youngest sibling, our only sister, even studied good, and my elder brother able to support her financially to bring her to Europe to study last year. My father suddenly passed away in 2023 with me and my elder brother also here. We can theoretically invite our mother here, but she doesn't want to, as she doesn't want to leave my younger brother alone. That's one problem, that at this age we can't be with her, and I feel guilty every day for not being with her, or her not being with us. She has suffered so much in her life, and now I wanted her to have a peaceful life with her son. How can I convince her to come here? I even told her to come on visit visa, but she says कि छोटे भाई का भी visa apply करो, which would be hard as he's not doing anything and my mom's visa might get rejected because of him. बिल्कुल सही बात है. Now the bigger problem is, since my dad died, my dada, chachas and puppos are trying to take over the property of my father. Since my dada is alive, so Islamically 1/6 of the portion of his property goes to one's father. We wanted to change the name of the property in our mother's or brother's name, but you need NOC from all the stakeholders of the property, including Dada. I've seen him throughout my life about his ignorance that it might be nearly impossible that he will give NOC. Even though my Dada has given plots, houses to all his children except my dad, and yet I don't believe he will let his share go. I stopped talking to him in 2007 and don't want to see him. I also married out of caste, so he also has declared me Jahannami. बच्चों का हक खाओ, उसमें जहन्नुम नहीं है. Thank God my mother took stand for me and apparently we got married. He was so stubborn that he didn't come to my wedding, but I don't give a fuck about this, about his thinking about me. Now if God forbid something happens to my mom, I know my Dadiyal will somehow take over my dad's property, and my younger brother would also be innocent and stupid to do anything about it. My elder brother thinks maybe we wait for my Dada, who is 92, that time to be over, but that seems far-fetched as no one knows how much life one has. Now, can you advise me what would be the best way forward in this situation? My suggestion would be to sell that house and give portions according to their shares, but my younger brother would be stupid enough to waste his, and with my mother there, it will not be easy for her to take care of herself.
सो वी आर स्टक इन दिस डिलेमा, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एडवाइस। सो बेसिकली एक साहब है, इनके वालिद साहब ने कमा कमा के सबको पाला और उन सब ने जो है उन्हीं के बच्चों को धुतकारा और बड़ा अब्यूज़ भी किया। ये एनओसी वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, एनओसी तो कभी भी नहीं देंगे वो। दादा ने आपको जहन्नुमी करार दे दिया तो वो वहीं जाके सुकून लेंगे, तो वो उम्मीद ना रखें। रही बात प्रॉपर्टी सेल करने की, मुझे ना आपने पूरी बात नहीं समझ आ रही। अच्छा, जो आपकी ददियाल समहाउ, तो आप ये चाह रहे हैं कि इससे पहले कि आपका ददियाल आपकी वालिद साहब मरहूम की प्रॉपर्टी हत्याले, तो आप चाह रहे हैं कि आप वो बेच दें, कि वो हत्याए ना, ताकि बेचने से कुछ आ जाए और सबको शेयर मिल जाए। अब इसमें ये होता है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते, आपकी जो मदर और आपका भाई है वो उस प्रॉपर्टी से कितना डिपेंडेंट है, लाइक उससे कितना किराया आता है, उनका गुजर बुसर अगर उससे होता है तो उसको फिर रहने दें। लेकिन अगर आपको यही खतरा खाया जा रहा है कि वो हत्या लेंगे, तो उस खतरे के में ये ना हो कि फिर आपके मदर की और भाई की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए। रही बात कि आपका भाई स्टूपिड है और वो अपने हिस्से का ख्याल नहीं रखेगा या खा जाएगा पी जाएगा, दैट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट योर्स। आपने अपना काम करना है भैया, ये तुम्हारा है, अब उसको नशे में उड़ाए, अय्याशियाँ करे, बिजनेस में लगाए, वो उसका अपना फेल है। आपकी मदर हु इज़ एडमेंट नॉट टू कम विजिट यू, और वो कहती है भाई को भी लेकर आओ, तो दिस इज़ क्लियरली लाइक वो उन्होंने आपके भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी है फॉर एवर एंड एवर। ये बात आप लिख के रख लें कि किड्स हु आर लैच्ड ऑन टू देयर मदर्स, ख़ास तौर पे मामास बॉय जो होते हैं, वो इतना डिपेंडेंट होते हैं कि वो खाना पीना भी उन्होंने ही देना है, तो ये बड़ी गलत हरकत होती है। बच्चों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। अब वो आप ज़ाहिर है आपको अपनी माँ तो याद आती होगी और ये गिल्ट भी खाता होगा कि यार माँ उधर है, हम इधर है, तो माँ आ जाए या हम आ जाए, आपके आने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ आके क्या ही करेंगे, तो बेहतर है वालदा उधर आए, विजिट पे आए। अब ये कि वो कह रही भाई का भी लगाओ, भाई का बिल्कुल वीज़ा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके भाई नाकारा हैं, कुछ नहीं करते, और उल्टा उसकी वजह से आपकी अम्मी का भी कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि आपके भाई आई एम अज्यूमिंग ही सिंगल, तो सिंगल का तो और नहीं लगेगा, क्योंकि फिर ये होगा कि वहाँ जाके शादी करके वहीं पड़ जाएगा, तो वो तो वैसे भी नहीं लगेगा आपके भाई का वीज़ा, अगर नौकरी भी कर रहे होते तो। कोशिश करें वालदा को कन्विंस करें कि आ जाएं, विज़िट कर लें। नहीं आना चाहती तो चले एक काम करें, दुबई तक आ जाएं। दुबई में हफ्ता, आई नो कि आसान नहीं है छुट्टियां लेना या इस तरह के ट्रैवल एक्सकर्जन्स करना, बट दैट्स द बेस्ट केस सिनारियो कि चलें आप मिलने कहीं आधे रास्ते आ जाएं। दुबई तक भाई को बुला लो, दुबई का तो वीज़ा मिल जाएगा, इफ़ यू कैन अफोर्ड, दैट इज़। तो ये एक तरीका है, बट ऑब्वियसली इस तरह वेकेशन पे मिलना और साथ घर में होना, वो घर में हो, बात करें, खाने वाने खाएं, उसका एक अलग फीलर है। दुबई में तो आप होटल में ही हो गए, तो दैट्स नॉट गोना बी द सेम थिंग, नॉट द बेस्ट एडवाइस, आई नो। सो ये है, ये वालदेन स्टबर्न हो जाते हैं। और आपके दादा की जो बात है, और ये फूफो और चाचे ताए जो हैं, आपके चाचे सारे आपके वालिद साहब एल्डेस्ट है आई गेस, सो टिपिकल टॉक्सिक फैमिली। वो एक मीम था ना कि मी विजिटिंग द प्रॉपर्टी माई फैमिली फॉट फॉर 20 ईयर्स, और वो एक खंडर होता है, मतलब इसके लिए लड़ रहे थे 20 साल। समझ से बाहर है यार, लोगों की क्या नीयत होती है, क्या सोच होती है, कब्र में टांगे होती हैं, बट उनको ये इस चीज़ का माल की पड़ी रहती है, माल की, कि बस ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। ना खुश रहते हैं, ना खुश रहने देते हैं। ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा, दैट इट डजंट ब्रिंग यू हैप्पीनेस, दैट इट डजंट ब्रिंग यू कंफर्ट। और आप हर वक्त, मतलब आपकी इतनी प्रॉपर्टी है और आप हर वक्त स्कीमों में लगे हुए कि अच्छा मैं इसको कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, साजिशें कर रहे हैं। असल में मसला ये है, इस मुल्क में महंगाई बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में ज़िंदगी बड़ी सस्ती है, ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारना कदरे बहुत सस्ता है, जितनी भी महंगाई हो जाए बहुत सस्ती है। अब ये मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिविलेज नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक लोगों की बात वहाँ तक गई ही नहीं कि सबको काम करना पड़े, जिस तरह अमेरिका में होता है कि भाई सब ने काम करना है, ऐसे गुजारा ही नहीं है, घर बैठने का कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पे चूंकि फरागत बहुत है तो घर में बैठ के स्कीमें हो रही हैं, ड्रामे देख रहे हैं, ड्रामे भी यही सिखा रहे हैं कि जी स्कीमें करो, प्लॉटें करो, प्लॉट बनाओ, प्लॉट खा जाओ, बस प्लॉट पे ही रह गया ये मुल्क भाई। दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, प्लॉटों में ही रह गए और फिर खुद प्लॉट बन जाते हैं किसी दिन। दादा के फौत होने का इंतज़ार ना करें, और दादा ने जो देना होता तो ज़िंदगी में दे देते, और उन्होंने आपको जहन्नुमी होने का फतवा ही दिया, तो आई थिंक वो यही देने के काबिल थे। एनओसी वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ट्राई करके देख लें, बट वो नहीं करेंगे। और इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं कि वो हत्याने की कोशिश नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज वही वाली बात है, बाप का साया सर पे होता है ना, तो 10 लोग 10 बार सोचते हैं। बट आपके फादर एब्सेंट रहे, अगेन इसमें जो लोग बाहर काम करते हैं उसका मतलब एब्सेंट नहीं है, मगर जो लोग ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं होते, ये एब्सेंटिज्म होता है। तो वो चूँकि एब्सेंट रहे तो आप वल्नरेबल रहे हैं, इसलिए आप पे अब्यूज़ भी होता रहा, आपको लताड़ा भी गया।
तो जब उनके ज़िंदा होते हुए नहीं छोड़ा तो उनके फौत होने के बाद क्या ही ख्याल करेंगे। और आई थिंक अभी भी जो थोड़ा बहुत रख रखा होगा आपके दादा की वजह से किया होगा ताकि वो हिस्सा सही से ट्रांसफ़र करके जाएँ। एक बार वो शील्ड भी गई फिर यू 100% वल्नरेबल। फिर यही है, बेच बाज के खली वली करें। जब आपने यहाँ नहीं रहना तो फिर आप क्या ही फ़िक्र करें। ज़्यादा पूरा जाने से बेहतर है थोड़ा बहुत हाथ में आ जाएगा। हाँ, बस ये ज़रा देखना है, ये आपने खुद एनालाइज़ करना है कि उस जो बेच रहे हैं उससे आपके अभी भाई डिपेंडेंट हैं या कितना % डिपेंडेंट हैं, या आपका वहाँ से कितना सपोर्ट है, या अगर वो डिपेंडेंसी गई तो आप उसको मेजर अप कर पाएंगे या नहीं। ये सब चीज़ें आपने खुद देखनी है। इसमें मैं कोई एडवाइस नहीं दे सकता। बस मैं बता सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल आपके जो खदशात हैं 100% दुरुस्त हैं और ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है। सो आई होप आपके मामला बेहतर हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। सो ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू गाइस एंजॉयड। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरत होती है सब्सक्रिप्शन की। इवन अगर आप किसी और ऐप पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे आ जाए, सब्सक्राइब कर दें, भला होगा आपका। और पेट्रियन पे सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा, इट हेल्प्स अस मूव थिंग्स अराउंड दिस चैनल। तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलता है अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज़।